Good morning student, welcome to our new exercise, that is volume of the sphere. 13.8 volume of sphere. One by one let me discuss the questions. First of all, the volume of sphere you all are knowing. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. Clear everybody? This is the formula for volume of the sphere. And now what is for the volume of a hemisphere? Volume of hemisphere, hemi means half, hemisphere volume is equal to 2/3 pi r cube. So these are the two relative formula that we will make use here, and we will go to the exercise one by one. In the question number 1, let me see what is given. First of all, we people have to find out the problem. Whatever the statement given, firstly analyze it and give its appropriate solution. So the first question is, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस. मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज गिवन. व्हाट इज गिवन माय डियर स्टूडेंट? रेडियस. सो रेडियस वैल्यू इज गिवन 7 सेंटीमीटर. सो यू आर नोइंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 pi r cube. So you can substitute the values one by one. So 4/3 pi value 22/7 and r cube, r is 7, 7, 7. So whatever the things being cancelled out, 7, 7, that is being cancelled out. So after multiplying this one, we are getting 1437.33 centimeter cube. So this is nothing but the volume of the sphere whose radius was given as 7 centimeter. My dear student, this first question, first part I have done, and second part you can attempt at home. It is your duty now. Now let me move to the next question. Question number 2. Further statement, what is given in the second question? Find the amount of the water displaced by the solid spherical ball of diameter 28 centimeter. Diameter of sphere is given 28 centimeter. So इसके द्वारा कितना पानी जो है वो डिस्प्लेस किया जाएगा. So half of the diameter is radius 14 centimeter. Now it's coming. Now I have to find out firstly the volume, then we will see it. Volume is equal to 4/3 into pi value r cube, 14 into 14 into 14, 7 2s are coming 14. So after multiplying all these terms, it's coming 11,498.6 centimeter cubic. So this was the volume of the spherical ball, and the water that will be displaced by this spherical ball will be equal to its volume only. Clear बेटा? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हो गया यहाँ पर. अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी हम प्रारूप देख लेते हैं. क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? हाँ, द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल. डायमीटर दिया है मेटालिक बॉल का, and the mass of the ball we have to find out. If the density of the metal is 8.9 per centimeter cubic. My dear student, in the science you have studied density is equal to mass per unit volume. तो सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. फिर जो मेरे पास डेंसिटी दे रखी है, मास फाइंड आउट करने के लिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम करेंगे. तो मेरे पास अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो लगभग
ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या दिया बेटा, डायामीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 4.2/2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस आ जाएगा। अब ये जो बॉल है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका वॉल्यूम होगा 4/3। ये हेमिस्फीयर भी नहीं है, ये फुल बॉल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 21/10, 21/10, 21 फर्दर 10। तो ये मेरे पास बनेगा बच्चों, ये लगभग बनेगा 38.80 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये मेरे पास आ गया इसका वॉल्यूम। अब मुझे रिलेशन पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो विच implies here mass will be equal to be volume into density। ये अब मुझे यहाँ से कैलकुलेशन कर लेनी इसकी। सो विच implies mass will be equal to be the density given in the book 8.9 multiplied with, it should be multiplied with 8.9 into 38.80. So this will come 345.3 ग्राम अप्रोक्सीमेट। तो ये मेरे पास उसका मास जो है वो कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंडर। क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसा कि आपने सरफेस एरिया के केस में क्वेश्चन किया था, उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज यूजली ही है, सिर्फ एरिया के प्लेस पे उसने सिर्फ वॉल्यूम का कंसेप्ट चूज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, एक मून है मेरे पास और एक साइड क्या है, अर्थ है। वन साइड इट इज मून एंड हियर अर्थ। मून है और अर्थ है बेटा, ठीक है। बोलता है डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का डायमीटर मैं मान लेता हूं x और मून का डायमीटर मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अर्थ। तो ये बनेगा x/4। क्लियर बेटा। तो ये चीज़ें दो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर मीन्स x/8 हो जाएगा इसका रेडियस, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, x/2 हो जाएगा। अब मुझे रेशो फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट। रेशो किसका, वॉल्यूम ऑफ मून ओवर वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये कैलकुलेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये होगा 4/3 पाई x/8 क्यूब ओवर 4/3 पाई x/2 होल क्यूब। 4/3 पाई कट, तो ये मेरे पास बनेगा x क्यूब ओवर 512 ओवर x क्यूब ओवर 8। So which implies this calculation will come as x cube over 512 into 8 over x cube further cancel out, 8 1 जा 64 जा, तो ये मेरे पास आएगा 1:64। This will be the required ratio in the volume of moon with respect to the volume of the earth. So this is our question number 4. Next, my dear student, question number 5. I will give you some question as homework. Let me see the typical type of question firstly. Question number 5. How many liter of milk can hemispherical ball? अब मेरे पास hemispherical ball बोला है। ये बात सबसे पहले हमें नोट करके रखनी है। hemispherical ball है इस तरह से, hemispherical ball है, उसके लिए डायमीटर गिवन है बाय डियर स्टूडेंट, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 105/20 मतलब 21/4 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बॉल का
रेडियस मुझे पता चल गया। अब मुझे हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, सॉरी इट इज हेमिस्फेरिकल, सो इट विल कम 2, राइट। 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा दैट विल बी 303.1875 लीटर। इतना मेरे पास, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है ये। इन लीटर इट विल बी divided by the term 1000, so after dividing with 1000 it will be 0.303 L। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने वॉल्यूम फाइंड किया है स्फेरिकल बॉल का। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद मैंने उसका कैपेसिटी इन लीटर फाइंड आउट कर दिया। यू नो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ L, सो दैट इज कमिंग 0.303। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। क्लियर। 6 आप होमवर्क में कर सकते हो, 7 भी आप होमवर्क में कर सकते हो। क्लियर बेटा। 6, 7 आप होमवर्क में कर सकते हो। 8 क्वेश्चन मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आई विल डू। लेट बी सी क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। क्या बोल रहा क्वेश्चन में? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल। एक गोल अर्ध गोलाकार एक बिल्डिंग है मेरे पास और उसको वाइट वॉश करने का टोटल कॉस्ट 452.56 रुपीज़ लग रहा है और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹2। फाइंड द इनसाइड एरिया ऑफ डोम। तो अब मेरे पास नंबर 1 इनसाइड एरिया ऑफ डोम क्या होगा? इनसाइड एरिया ऑफ डोम कितना होगा बेटा? इसका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 452.56 divided with ₹2 was the cost of 1 meter square, so it is coming as 226.28 meter square. So this is nothing but the area of inside the dome. अब एरिया ऑफ इनसाइड हेमिस्फेरिकल डोम है, मतलब हेमिस्फेयर है, तो वो हमारे पास किस शेप का होता है बेटा? हेमिस्फेरिकल बॉल की तरह होगा ये। अब सेकंड पार्ट के अंदर मुझे फाइंड करना है रेडियस। तो मुझे पता है रेडियस फाइंड करने के लिए हेमिस्फेरिकल का ये 4πr² कर दूंगा, तो ये हेमिस्फेयर का निकलेगा, मतलब 2πr², दैट विल बी इक्वल टू बी 226.8। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँगा तो मेरे पास रेडियस का जो वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगा। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट। 22/7 इंटू r² 2 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 226.8। सो r² विल बी इक्वल टू 226.8 इंटू 7/4 लिख दो आप तो भी चलेगा, या आप सिंपली लिखो 2 इंटू 22, तो यहाँ पर कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। सो इसको कैंसिल आउट करके मेरे पास बनेगा r² इक्वल टू 36। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? व्हाट इज द √36? दैट इज 6 ओनली। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा? मेरे पास रेडियस का वैल्यू आ गया 6 मीटर। अब आगे की जो बात है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मुझे फाइंड करना है। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर that is equal to 2/3 pi r³ that goes 2/3 pi का वैल्यू 22/7 इंटू r³ 6 6 6 3 2 तो ये लगभग आप लोगों को जब कैंसिलेशन आप कर रहे हैं तो ये आएगा 452.57 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल जो है वो आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हमने एक एक पॉइंट को नज़र से ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मेरी नज़र में है क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रीक नज़र से मैं इसको देख रहा हूँ और आपको समझाने की भी पूरी कोशिश किए जा रहा हूँ। मेरे पास दिए हुआ है बच्चों, ये छोटे छोटे ऐसे स्फेयर्स दिए हुए हैं, ऐसे ये इसमें कितने स्फेयर हैं बेटा? ये 27 स्मॉल स्फेयर हैं। कितने छोटे छोटे दाने हैं ये? 27 स्फेयर। इन सभी को मैं क्ले से बनाया हूँ और इनको मैंने मेल्ट कर दिया और एक बड़ा गोला बना दिया। यहाँ से ये बड़ा गोला बनाया, बिग बॉल मैंने इसकी बना दी, ये बिग स्फेरिकल बॉल मैंने इसकी बना दी माय डियर स्टूडेंट। इसकी रेडियस जो है वो आर बोल दी है सिंबॉलिकल फॉर्म। इसका सरफेस एरिया जो है वो एस बोल दिया है और इसकी रेडियस जो है, जो बिग स्फीयर बना उसको आर डैश बोला और इसके सरफेस एरिया को मैंने क्या बोल दिया? एस डैश बोल दिया। दीज आर द नोमेनक्लेचर, मैथमेटिकल नोमेनक्लेचर ऑफ द रेडियस एंड सरफेस एरिया। क्लियर? तो ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल शॉट्स एंड बिगर शॉट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आप 27 को आप मेल्ट कर रहे हो, एक बड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 27 छोटे छोटे स्फीयर का वॉल्यूम जो है इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 स्फीयर का वॉल्यूम जो है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू बी 4/3 पाई आर डैश क्यूब होना चाहिए। तो 4/3 पाई 4/3 कट हो गया, पाई भी कट हो गया, तो ये मेरे पास बना 27। हाँ, ये मेरे पास बनेगा बच्चों, देखते हैं हम 27, सॉरी बाय मिस्टेक, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश होल क्यूब। तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा? इनका मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ। सो आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट 3 टाइम्स आर इक्वल टू आर डैश, ये मेरे पास बना है आर डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर बन गया। अब इसके बाद की जो बात है, इसके बाद क्या आता है बेटा? ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया है? फाइंड द रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। नाउ रेशो किसकी? एस ओवर एस डैश। एस जो है वो स्मॉल शॉट का है 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ ही गया है कि 4 पाई और 4 पाई कट हो गया है, तो ये आर स्क्वायर तो एज यूजुअल फॉर स्मॉल शॉट रहेगा ही। आर डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा? यहाँ देखो आर डैश की वैल्यू कितनी है? 3r। तो यहाँ पे आप 3r पुट कर दो, ये बनेगा आर स्क्वायर ओवर 9r स्क्वायर। तो ये बनेगा 1:9। कितना आंसर बनेगा? 1:9। ये आपका जो मेन इसका जो रेशो है सरफेस एरिया का वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एम राइट? क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको अगर डिक्टेट करा दूँ यहाँ पे स्टेटमेंट में, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या बताया है बच्चों कि एक कैप्सूल है मेडिसिन का, वो स्फेयर की शेप का है, उसका डायमीटर 3.5 है। डायमीटर है तो आप रेडियस निकालो, फिर आप उसका वॉल्यूम निकाल दो। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसके अंदर जो है दवाई जो है, मेडिसिन जो है, उसके ग्रैन्यूल्स जो है वो फिल होंगे। ठीक है बेटा? तो ये हमारा 13.8 जो है वो आज ओवर होता है। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बी सेफ एंड बी हेल्दी।